Hi guys, welcome back to my channel. Myself Nidhi Sharma Roy here, and today is 16th of September and right now it's 3 p.m. in the afternoon. और हमने all of sudden plan किया है और हम जा रहे हैं G for गोवा। और गोवा हम इसलिए all of sudden इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये हमारा बर्थडे मंथ है। हम तीनों का बर्थडे इस मंथ में ही है, तो हमें वीकेंड में कहीं अच्छे से रूम्स नहीं मिल रहे थे। लाइक लास्ट वीकेंड भी हम प्लान कर रहे थे जाने का, तो हमें रूम नहीं मिले, तो इस वीकेंड के लिए हमें 2 नाइट्स के लिए रूम मिला है और हम वहाँ पे सरोवर पोर्टिको पैलेस में स्टे करेंगे। बट उसकी बुकिंग हमने कल की ली है और आज हमने आफ्टरनून में इसलिए निकले क्योंकि हमने निमित का ऑनलाइन क्लास किया और उसके बाद फिर सुमित ने अपना ऑफिस भी ख़त्म किया। उसके बाद फिर हम अभी निकल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज जितना हो सके रास्ता हम कवर कर सकें और फिर रात में अगर लाइक हम थोड़ा टायर्ड हो जाएंगे तो हम कहीं रात को हॉल्ट कर लेंगे, जिसका बुकिंग हमने नहीं किया। ऑन द वे हम देखेंगे कि कहाँ हमें स्टे मिलता है, तो हम वैसे ही होटल ले लेंगे और फिर हम कल सुबह सरोवर पोर्टिको में चेक इन करेंगे। तो हम अब निकल गए, तो अब हमारे ब्लॉग में आप बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, जिससे आपको जो भी मैं नया ब्लॉग डालूंगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। और मेरे चिकमंगलुरु का ट्रिप का ब्लॉग भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू। अगर कोई व्यूअर मेरे ब्लॉग पे नए हैं और जिसने मेरे चिकमंगलुरु ट्रिप का ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जाके देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस ब्लॉग में आप बने रहिए। मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई है, सारी उलझने सुलझ गई, सुलझ गई, सुलझ गई। How is it, Nimish? Very nice. Shall we eat here? Yeah, Okay, done. the ambience is very good of here.
So after driving almost like around 300 and plus kilometers, we have reached to a very good place. It looks like very good, but don't know how the food will be. And this place name is Elements Resto Bar. And here we have taken lime soda, and Buko has taken his favorite Mirinda. Sumit has taken Pepsi, and we are waiting for our dinner. And we have ordered a simple dinner here, like tandoori roti, dal fry, and chili paneer to be on a safer side, because like we have to travel like around more 250 kilometer plus to reach Goa. So if Sumit will be able to drive, we'll drive, or else I will take a halt somewhere. So let's see how it goes. So now we are waiting for our food. तो दाल फ्राई एंड रोटी अगर आए So here we paid 1197 rupees for our lavish dinner. तो डिनर के बाद हम फिर से NH48 पे आ गए और अभी तक बैंगलोर से दावनगिरी तक का रोड हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही स्मूथ ड्राइव था और अब अंधेरा हो रहा था तो हमें थोड़ा टायर्ड लग रहा था, तो हमने सोचा कि अब होटल खोजना स्टार्ट कर देते हैं. Finally found a place where we can sleep for almost 6-7 hours, and this is the name of the place, Acha Comforts. We can catch some sleep and then we'll go to Goa tomorrow morning. So here we did night stay and it costed us 1500 rupees for AC deluxe room. Here breakfast costed us 225 rupees. Now we are going to start. हमने अपना breakfast भी कर लिया है. अब हम यहाँ एलापुर से निकल रहे हैं. All set, guys? यस The sound of the river really enthralls me, and you can see, because of the heavy rain, several trees have been uprooted as well. A steep slope here. This place is really awesome. Yeah, it's very awesome. We took a little off-roading from NS63. We took a left. We were following a river. Parallelly, we were following a river on NS63. We thought, let's give it have a look at the river, because it was looking big in size, and really it was. As you can see, it's I don't know the name of the river. I will put in when I will make the video. We'll put the name of the river.
Further 16-kilometer off-roading we did, and we reached to a very beautiful and mesmerizing waterfall named as Bibhuti Waterfall, and it's like a hidden gem inside a village. So after enjoying the waterfall, we again came back to our main route, that is NH66. Landslide. Oh, what's new? Pathar? What's that? It's in Den or something, I think. Why so many eagles are there? What are the eagles eating? What is that stone, Papa? That big stone which is there on that mountain? तुमसे ये वो कहती है I can see one big wall, Papa. It's looking like it's something Dudhsagar only, same like Dudhsagar. On Goa Karwar Road, we stopped at Warship Museum. Nimitz really wanted to see the ship. So if you want to see the full blog about Warship Museum, I will be uploading the video soon. So this is the current scenario at Karnataka-Goa border, and information regarding travel restriction and documentation I'll be giving you in the end of the blog. NH66 is so good, Papa. Infrastructure to improve here, south में. Every place has nice roads now. This was, I don't remember Goa road like this. गाइस, तो फाइनली हम गोवा पहुंच गए। हमने चेक इन फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म कर लिया है, हम फ्रेशन अप हो गए और हमने अपना डिनर भी ख़त्म कर लिया। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं अपने पूरे ट्रिप का सारा डिटेल्स आपको दूंगी। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। जैसे कि हमने आफ्टरनून में स्टार्ट किया, तो मेरी एडवाइस रहेगी व्यूअर्स से
कि आप मॉर्निंग आवर्स में स्टार्ट करें, क्योंकि ड्राइव बहुत ही सीनिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस चीज़ को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप ज़रूर सुबह स्टार्ट करें। आफ्टरनून में स्टार्ट करते हैं तो आपको फिर बीच में हॉल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एडवाइस रहेगी कि आप रात को ट्रैवल ना करें, क्योंकि घाट सेक्शन है तो सेफ्टी इशू आ सकती है, क्योंकि रोड भी काफ़ी मतलब घाट सेक्शन के वजह से उतनी लाइटिंग नहीं होती है, तो उतनी विजिबिलिटी नहीं होती है, तो रोड में आपको ड्राइव करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो आप मॉर्निंग आवर्स में स्टार्ट करें, और इन केस अगर आप आफ्टरनून में स्टार्ट करते हैं तो अपना होटल का बुकिंग पहले कर लें, क्योंकि हमें होटल खोजने में बहुत मुश्किल हुई थी। नेट पे भी कुछ भी आपको ढंग से होटल नहीं मिलेगा। तो अगर आप बैंगलोर से निकलते हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी कि यल्लापुर में एक जगह है अच्छा कंफर्ट इन, एक वो बहुत ही बेसिक होटल है, लॉज कैटेगरी का होटल है, बट जहाँ तक स्टे करने की बात आती है जस्ट नाइट हॉल्ट के लिए तो ठीक है, लाइक 1500 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं AC रूम का, जिसमें कोई ब्रेकफास्ट और चाहे कोई भी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, बट अच्छा स्टे मतलब कर सकते हैं, मतलब ठीक है, कंफर्टेबल था, हमें अच्छा लगा वहाँ पे स्टे करके। और बेस्ट पार्ट है वहाँ नीचे ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, क्योंकि एक बार आप यल्लापुर से निकलते हो, यल्लापुर टू अंकोला का जो NH 63 लेते हो, तो वो फुल लाइक वेस्टर्न घाट की फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे आपको ज़्यादा कोई भी मतलब ढंग का ब्रेकफास्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप ब्रेकफास्ट यल्लापुर में ही कर लें। उसके बाद फिर हमने एक एडवेंचरस चीज़ ये किया कि हमने NH 63 में हमें गोकर्णा का रूट दिखा रहा था, वहाँ पे साइन बोर्ड में हमने देखा विभूति वाटरफॉल है, तो हमने वो ऑफ रूट लेके हम विभूति वाटरफॉल भी इंजॉय किए। फिर हम वापस NH 63 पे आए और फिर हमने अंकोला वाला रोड लेके नेशनल हाईवे पे फिर पहुँचे। और एक बार आप जब कारवार पहुंच जाते हैं तो अगर आप किसी बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरी ये बहुत अच्छी एडवाइस होगी कि आप वॉरशिप म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करें। वो बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होगा, क्योंकि बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है नेवी शिप्स एंड ऑल, तो उसमें आप पूरे अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि उस शिप के अंदर कैसे होते हैं, सेलर्स कैसे स्टे करते हैं, उनकी बेड, बुलेट, सभी कुछ वो देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरे पुक्कू को तो बहुत प्यारा लगा वो चीज़ देख के। और वो भी वॉरशिप म्यूज़ियम एक बीच के सामने ही प्लेस की हुई है, तो बहुत ही अच्छा लगा वो भी एक्सपीरियंस हम करना। फिर हम वॉरशिप म्यूज़ियम देख के हम आगे पहुँचे तो हमें गोवा का बॉर्डर आ गया, जहाँ पे वो सारी गाड़ियाँ स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूर कंपलसरी है, वो आपको लेके ट्रैवल करना। और इन केस आप डबल वैक्सीनेटेड हैं तो आपकी वैक्सीनेशन 15 डेज़ पहले की कंप्लीट हुई होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ बहुत मैंडेटरी है, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो ये दो चीज़, अगर इन दोनों में से कोई चीज़ है तभी आप ट्रैवल करना सोचें, नहीं तो फिर वहाँ पे वो टेस्ट करते हैं, जिसका शायद 270 रुपीज़ टेस्ट करते हैं, और वो इमीडिएटली वो रिपोर्ट देते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तभी वो अलाउ करेंगे। तो ये सब चीज़ ज़रूर लेके ट्रैवल कर। इवन यहाँ पे होटल पे भी हमसे उन्होंने RT-PCR नेगेटिव टेस्ट या डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा। और जहाँ तक पेट्रोल की बात आती है तो बैंगलोर टू गोवा हमारे I-10 में अराउंड एक बार हमने फुल टैंक करवाया, फिर से हमने सेकेंड टैंक भी फिल करवाया, तो सेकेंड टैंक अभी लाइक हमारा हाफ ख़त्म हुआ है, तो अराउंड 1.5 टैंक्स हमें पेट्रोल लगा यहाँ तक आने के लिए। और गोवा का वेदर अभी बहुत अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, तो हम बहुत इन्जॉय करने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जो अगर मैं नेक्स्ट गोवा की ब्लॉग डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप ज़रूर देखिए हमारा ब्लॉग। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मेरे गोवा के। तो प्लीज़ 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 लाइक माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।